हेलो दिस साइड प्रियंका। मैं आज आपको पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के बारे में बताऊंगी। तो इसमें जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं सीजेट का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। लाइक चारों ऑप्शंस जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि हाँ यही आंसर है, बट वो आंसर नहीं होता है। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप ये देख सकते हो। तो मेरे चैनल पे लर्न इन लर्निंग स्कूल, यहाँ पर अभी हम सीडीपी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सीडीपी पे वो क्वेश्चंस अगर आप क्लियर सुनोगे तो आप इनके आंसर्स प्रॉपर दे सकते हो। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी नोट्स मैं बनाऊँ वो आपको प्रोवाइड हो जाए। तो इसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टेंडेंसी टूवर्ड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आफ्टर दैट मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी इसकी सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट पर। सो इन साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले मीन संज्ञात्मक विकास। इसमें जीन पियाजे, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको इतने इम्पोर्टेंट बताऊंगी कि ये अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जो अब एग्जाम आ रहा है जुलाई में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। तो जीन पियाजे ने अपने खुद के चाइल्ड पर ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक्सपेरिमेंट शेयर किया था। इसमें फीचर्स मैं आपको बताऊंगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डेवलपमेंट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछा जाएगा। एंड जीन पियाजे, चाइल्ड वर्क्स लाइक अ साइंटिस्ट। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज ओवन नॉलेज। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, थॉट्स डेवलप फर्स्ट इन चाइल्ड थ्रू देन लैंग्वेज। According to Jean Piaget, biological maturity play an important role in child's learning. These theories also known as theory of mental development, intellectual development and cognitive development. ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इसको क्या क्या कहा गया है। इसे मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। सो cognitive development means the development of intelligence, conscious thought and problem solving ability that begins in infancy. Cognitive development is the developmental process by which an infant becomes an intelligent person, acquiring knowledge with growth and improving his or her ability to think, learn, reason and abstract. And in science, cognition refer to mental process. These processes include attention, remembering, producing and understanding language, solving problem and making decision. Cognitive development refers to how a person perceives, thinks and gains understanding of his or her world through the interaction of genetic and learned factors. Among the area of cognitive development are information processing, intelligence, reasoning, language development and memory. तो ये है अब हमारा cognitive development। अब हम पढ़ेंगे about level of development. It's biological maturity first, second is interaction with physical environment and third is interaction with social environment. And in that important point is cognition and emotions are interlinked and affect each other. It is very important point. You should learn these points. Now I will discuss about tendency toward development. Its tendency towards organization means schema and tendency towards adaptation means assimilation and accommodation. First I will tell you about the constructivism. You know that Jean Piaget is also known as father of constructivism, and how knowledge is constructed in the human being when information comes into the contact with existing knowledge means schema, and that had been developed by experience. And according to Jean Piaget, constructing knowledge involves a process of solving problem in order to eliminate disequilibrium. This is accomplished through assimilation, accommodation and equilibrium. अब मैं आपको बताऊंगी स्कीमा के बारे में कि स्कीमा होता क्या है। When a child sees something new in his environment and he feeds some new information in his mind to recall the name of the thing. Schema.
जब बच्चा कोई भी नई चीज़ देखता है एनवायरनमेंट में, वो उसका नेम फीड कर लेता है अपने माइंड में और उसको याद करता है उस नेम को कि इस चीज़ का नेम ये है। तो ये हमारा हो गया स्किप। Now assimilation. Assimilation is such a process in which a child takes the help of earlier learned strategy or mental process. It is biological process. According to Piaget, from biological point of view, assimilation is the interaction of external element into evolving or complete structure of an organism. So what is assimilation? When a child connects his previous knowledge to his new knowledge and do not learn something new schema is not formed and old schema is not modified. सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये पॉइंट्स आ चुके हैं और इस टाइप के पॉइंट्स ही आपके आते हैं। आप एक बार चेक करना, प्रीवियस जो आपके पेपर होंगे उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ना तो आपको लगेगा हाँ ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। And accommodation, when a child connects his previous knowledge to his new knowledge and he learns something new schema is formed and old schema is modified. Now in schema उस लड़के ने लर्न किया है कि ये जो है कैट है। उसके बाद एसिमिलेशन क्या होता है, बॉय ने एक छोटा सा कप देखा और उसे कहता है ये कैट है, लेकिन सिस्टर कहती है नहीं ये कैट नहीं है ये एक कप है। नाउ अकोमोडेशन में ही अकोमोडेट न्यू स्कीमा ऑफ कब। अब उसे पता लग गया कैट क्या है और कब क्या है। अपने एक न्यू चीज़ सीखी, न्यू स्कीमा, उसने एक कैट का नेम सीखा। उसके बाद उसने सीखा कि वो कैट की तरह दिखता है कब, लेकिन वो कैट है। अब उसे नहीं पता कि वो कैट है, अच्छा उसे ये नहीं पता कि वो कब है। तो ये हो गया हमारा एसिमिलेट, ठीक है। लेकिन जब उसे पता लग गया कि ये कैट है और दिस इज कब and that is cat, so that it is accommodation. तो मैंने स्कीमा, एसिमिलेशन और accommodation के एग्जाम्पल भी आपको दे दिए। नाउ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट सेंसरी मोटार स्टेज, बर्थ to 2 years. Second is pre-operational stage, it is 2 years to 7 years. And third is concrete operational stage, it is 7 years to 11 years. And fourth is abstract operational stage, it is also known as formal operational stage, it is above 11 years. तो जो इनके जो ईयर्स हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी मोटार स्टेज होगा उसकी जो स्टेज की जो ईयर्स होंगे वो क्या होंगी। मीन्स जब वो बर्थ करता है, बर्थ से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो सेंसरी मोटार स्टेज में होता है। इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज का अगर वो आपसे पूछते हैं कि 2 से 7 साल की एज में कौन सी स्टेज होती है, तो दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। देन क्वेश्चन आता है आपका इसी से रिलेटेड, 7 to 11 ईयर्स के बीच में कौन सी स्टेज होती है, दैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं इनके ऊपर, तो आपको ये पॉइंट्स लर्न करने होंगे, ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ हो गया एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, ये हमारा 11 अबव है। मीन्स 11 अबव जितने भी ईयर्स 11 अबव ईयर्स वाले बच्चे हैं वो आते एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल में। नाउ फर्स्ट सेंसरी मोटार स्टेज, फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेंस और मसल्स, टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन मीन्स कॉपी करना सीखता है बच्चा। नाउ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी मीन्स व्हेन फाइंड बेबी अ ऑब्जेक्ट, कोई भी बच्चा कुछ ऑब्जेक्ट ढूंढता है और अगर हम इसे छुपा देते हैं तो वो भूल जाता है, लेकिन जब उसको ढूंढता है बच्चा तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी में नहीं आता। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंसरी मोटार स्टेज। नाउ प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, चाइल्ड cannot differentiate between living things and non-living things. So C is development of egocentrism. Egocentrism means बच्चा egocentrism में हिंदी भाषा सीखता है ना। उसे पता होता है कि आसपास कौन सी लैंग्वेज चल रही है तो वो उस चीज़ को सीखता है। सेंट्रलाइजेशन, एंड अ चाइल्ड थिंक अबाउट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ थिंग मीन्स इस अवस्था में जो बच्चा होता है किस चीज़ के एक पहलू को ही देखता है।
अगर लाइक मैं उसको एक क्यूब देती हूँ, लेकिन क्यूब बनाकर देती हूँ, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि क्यूब में 6 पार्ट्स होते हैं, वो ये बताएगा कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। Reversibility, a child did not have reversibility. And conservation, a child tell about the thing big and small according to the size, not real quality. Means अब वो 1 किलो कॉटन को ज़्यादा बताएगा 1 किलो आयरन से, है ना। आयरन का पीस तो छोटा है, लेकिन वो क्या बताएगा 1 किलो कॉटन ज़्यादा बड़ा है, तो उसे नहीं पता होता। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन इज फुल्ली ऑफ फॉल्स। नाउ ये हमारे हो गए प्री ऑपरेशनल। नाउ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 7 to 11 years. इन दिस स्टेज चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स और ऑब्जेक्ट। एनिमीज्म फिनिश हो जाता है, ईगोसेंट्रिज्म फिनिश हो जाता है। ईगोसेंट्रिज्म लाइक उसमें ईगो थोड़ी खत्म हो जाती है, लाइक छोटा सा जो बच्चा होता है उसमें ईगोसेंट्रिज्म होती है। उसे अगर किसी और को अगर हम चॉकलेट देते हैं या किसी और से हम अटैच होते हैं तो उसको बुरा लगता है, तो इसमें ईगोसेंट्रिज्म फिनिश हो जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, कंजर्वेशन आ जाता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज करेक्ट। नाउ एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर्स से अबव होते हैं। चाइल्ड थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। वर्क इन सॉफ्टवेयर नॉट हार्डवेयर, अब वो सॉफ्टवेयर पे काम करने लग जाता है, जो दिखाई नहीं देता, जो टच नहीं होता, जो फील कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेटिकल रीजनिंग, समस्या का हल सर्च करता है। डिडक्टिव ऑफ रीजनिंग, बच्चे को नाउन सीखने पर वो एग्जाम्पल दे रहा है, जब उसको नाउन सिखा देते हैं तो वो क्या करता है एग्जाम्पल देता है, मीन्स डिडक्टिव ऑफ रीजनिंग। नाउ इंडक्टिव रीजनिंग, इट इज बेस्ट व्हेन एग्जाम्पल टू क्वेश्चन, अगर हम उसको एग्जाम्पल देते हैं तो उस एग्जाम्पल से वो क्वेश्चन बनाता है, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडक्टिव रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो पढ़ाया जा रहा है वो इंडक्टिव रीजनिंग पर है।